Assalamu alaikum students. Today we will do theorem 3 of chapter number 10 and the chapter name is congruent triangles. So what we will do the congruency or we will show the congruency between the two triangles. So first of all what we will do, we will see the statement. By seeing the statement you can see in a correspondence of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then the two triangles are congruent. What does it mean? If you having the two triangles, like one triangle is ABC and the other triangles that is DEF, so what does it mean? This is DAF, DEF. What does it mean? You will be going to show the correspondence between these two triangles. So what we will do and what you are going to draw first, the first I'll be going to draw the two triangles. Over here you can see the figure, complete figure. This is the complete figure after the construction. So what I'll be going to show you in a smaller way, that is you can see that I have the two triangles, like for example ABC and the other triangle is DEF. One thing, uh, be very careful while drawing these triangles, the sides of the triangle must be the same. As you know, when the triangles are congruent, what does it mean? If two triangles are congruent, their corresponding sides and the shape, or you can say the shape and the size is same. So while drawing the two congruent, be very careful, the sides should be the same. For example, if ABC is this, then DEF is this. We have these two triangles. Now, one thing more that should be clear to you, that the side over here in the base BC, I'll be showing with you with the red pen, BC and EF. That should be the bigger size in size from the remaining two sides. So now we can see that AB is congruent to DE, now BC is congruent to EF and AC is congruent to DF. So these are the two triangles that we have in the given. Clear? So I'll be writing in the given, one second. Like you can see that in the statement which I told you, you need to write down the statement right after the if statement. You can see if statement till this comma. After this if, you are going to write down the statement in the given section, this one. Triangle, in given, in triangle ABC, which I have drawn already over here, and in DEF, what are the corresponding sides? The corresponding sides are AB is congruent to DE, BC is congruent to EF, and AC is congruent to DF. This is your third side that is congruent to the previous triangle, that is ABC. Now these are the things that we have written in the given. Clear? Now what is, we will write it down in the to prove, which I have told you that the statement right after the then, that should be written in under the to prove heading. The to prove heading is given over here, and after this you will write then the two triangles are congruent. Which two triangles? Which have been drawn already, ABC and DEF. So you can see triangle ABC is congruent to triangle DEF. It's also done. Now moving towards the construction. Construction, what is a construction? We can see that, which I told you one thing, that this side should be the greater one other than the two sides. Clear? On this greater side, you are going to take this base and draw the triangle. For example, suppose we will see that in triangle DEF, this is triangle DEF,
the side EF is not smaller than any of the remaining two sides, which I told you it is not smaller than any to the remaining side. जो आपको मैंने क्लियर बताया था कि ये वाली साइड आपने बड़ी ड्रॉ करनी है इन दो साइड से, तो व्हाट डज़ इट मीन कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि दिस इज़ नॉट स्मॉलर देन द एनी अदर टू साइड्स. क्लियर? Then on EF we will draw a one triangle that is like this, MEF. Clear? In which angle FEM, where is angle F? This is F, this is F. Clear? Angle FEM, I'll be showing it with blue now. FEM like this, FEM, like this is your E and this is your F. Clear? Now what is triangle FEM? This angle, इसकी बात हम कर रहे हैं. Clear? Angle FEM is congruent to angle B, this angle B. And one thing more in the construction, that is ME, this is your M, so ME is congruent to AB. I'll be showing it with black. ME is congruent to AB. So what is it? दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज दैट इन ट्राइंगल DEF, जो ऑलरेडी आपकी ट्राइंगल थी DEF, उसमें आप कहते हैं कि EF इज़ नॉट अ स्मॉलर साइड than the remaining two sides. Clear? That is remaining two side DE and EF. So what we will do, we will construct a triangle MEF on this. After drawing a triangle, you can see angle FEM, this angle, this one angle, okay, angle FEM is congruent to congruent angle B. Clear? अब ये जो पूरा एंगल है MEF एंगल B के कॉन्ग्रेंट है, और उसके बाद सेकेंड चीज़ जो हमें इसमें से पता चल रही है वो क्या है, डैट इज़ ME कॉन्ग्रेंट है, जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है वो क्या है, AB के कॉन्ग्रेंट है. नाउ वी हैव टू थिंग्स डैट वी हैव नाउ इन द कंस्ट्रक्शन. सो व्हाट वी विल डू, जॉइन D एंड M. आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है D और M को. ठीक है, ये आप D और M को ज्वाइन कर देते हो विद द डॉटेड लाइन. ठीक है. So as what you have given in the construction, what is given now, we have the two triangles over here, this triangle and this triangle. Okay, now you can see that after uh, making the triangle, we will be seeing that over here the angles name are mentioned. This is angle 1, this is angle 2, this is angle 1, 2, 3 and 4. We have 4 triangles जिनके हमने इनको लेबल कर दिया है. अब स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ. कंस्ट्रक्शन भी होगी, सब कुछ हो गया, तो हमने प्रूफ की तरफ आ जाना है. अपने प्रूफ कैसे करना है, मैंने आपको पहले जितने भी थ्योरम्स, 2 थ्योरम्स इससे पहले करवाए हैं, और उसमें आपको बताया है कि जो भी हम कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल लेते हैं पहले हम उसको पिक करते हैं. तो अब देखें, ABC ओरिजिनल ट्राइंगल एंड द कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल इज ट्राइंगल MEF. दिस इज़ अ ट्राइंगल. नाउ आई विल बी शोइंग इट विथ यू द रेड पेन. एक हमने लेना है जी, दिस वन, ABC. एक ये ट्राइंगल बन गई, और दूसरी ट्राइंगल है MEF, एक ये ट्राइंगल. अब हमने ये 2 ट्राइंगल्स लेनी है. क्लियर? आफ्टर टेकिंग दीज 2 ट्राइंगल, व्हाट यू विल सी, आपको जो चीज़ें कंस्ट्रक्शन में बताई गई थी वो भी आपने याद रखनी है. अभी सबसे पहले हमारे पास, हम 2 ट्राइंगल की जब भी बात करते हैं, आपने कोई भी पोस्टुलेट्स लगाने हैं, आपको पता है कि हमारे पास कौन कौन से पोस्टुलेट होते हैं. लाइक हम कह देते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, एंगल साइड पोस्टुलेट. कोई भी पोस्टुलेट आप लगाएंगे तो आपने उसकी हेल्प से इसको फाइंड आउट करना है. सो विच पोस्टुलेट वी आर गोइंग टू यूज़ ओवर हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी दैट BC, this BC. ठीक है, what I'll see, this BC, now BC, this BC
is congruent to EF. How? Why? Because this was in the given. You can see from here. So when I am writing over here BC is congruent to EF, so I'll write the statement that is the reason, that is it is in the, where it was given in the statement under the heading of given. क्लियर? तो सबसे पहले आपने ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल्स आपने बनाए थे बेटे, उसमें आपने क्या करना है, दिस इज़ ABC, आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये ट्राइंगल है ABC एंड द अदर ट्राइंगल इज़ MEF। इनकी जो बेसिस वाली ट्राइंगल है ना, अगर आप देखें ये द लाइंस भी बनी हुई हैं, तो ये आपको इधर से क्लियर हो जाएगा, इट वाज ऑलरेडी इन द गिवन। सो यहाँ तक हमने कर लिया। आगे हम चलें तो हमें हमने चीज़ें बताई थी कि एक हमें पता चला था एंगल इक्वल है। कौन सा एंगल इक्वल है, जिसको अब मैं ब्लैक से बनाने लगी हूँ, ये वाला एंगल था कि हमने कह दिया था कि एंगल FEM, ये वाला एंगल FEM किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEM। वाई? बिकॉज इट वॉज इन द कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बताया, ठीक है। एक और चीज़ कंस्ट्रक्शन से हमें पता चली थी कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ME। AB आपके पास किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये मैं आपको ब्लू से बता देती हूँ, AB आपके पास कॉन्ग्रुएंट है ME के। तो अब आप देखें, जब मैंने क्या चीज़ डिस्कस कर ली, एक मैंने साइड डिस्कस कर ली, दूसरे मैंने एंगल डिस्कस किया, थर्ड मैंने अगेन साइड डिस्कस की, तो व्हाट I am taking the postulate, that is side angle side postulate. So when the three things are equal, when we are using the side angle side postulate, means one side, one angle, and second side means two side and one angle of one triangle, इस ट्राइंगल का अगर कॉन्ग्रेंट है इस कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के साथ, तो व्हाट डज इट मीन कि ट्राइंगल ABC इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MEF। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही आपको बताया जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने कॉन्ग्रेंसी अगर प्रूफ कर दी है, इन केस आपने अपनी कॉन्ग्रेंसी शो कर दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कॉन्ग्रेंसी शो करते हैं तो उसके बाद हम एक चीज़ कंक्लूड करते हैं। हम कहते हैं हेंस, या हम कहते हैं सो, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, कुछ भी आप कह लें। तो हमें क्या पता चला कि मेरी इस ट्राइंगल में एक मेरी ये वाली ट्राइंगल है, एक मेरी ये ट्राइंगल, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो मेरे पास जो एक साइड है, कौन सी, CA इज कॉन्ग्रुएंट टू FM। क्यों? बिकॉज अब देखें, मेरी ये साइड हमने ऑलरेडी ली हुई थी, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कौन कौन सी साइड्स हमने पहले डिस्कस की हुई थी। ये वाली साइड, ये हमने पहले ली हुई थी, 1 सेकेंड, ये साइड हमने पहले ली हुई थी, ये भी साइड हमने बता दी है, ये पहले ली हुई थी, ये भी बता दिया, तो ओनली दिस साइड एंड दिस साइड इज़ लेफ्ट। तो मैंने कंक्लूजन में ये बता दिया कि CA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FM, और रीज़न इसकी डेफिनेटली यही बनेगी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो कंक्लूड करने के बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, जो हम चलते हैं अपने गिवन की तरफ। CA अगर आप देखें तो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल था, CA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FD, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वही वाली ट्रांजिटिविटी वाली बात आ गई कि अगर एक चीज़ FM के इक्वल है, ठीक है, CA FM के इक्वल है और CA अगेन FD के भी इक्वल है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, वी विल गेट द रिजल्ट दैट CA, ये CA अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ तो व्हाट विल लेफ्ट, FM एंड FD। तो यू कैन सी FM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FD। तो ये हमें एक रिजल्ट मिल गया फ्रॉम 1 एंड 2। कहाँ से, एक ये, और इस स्टेटमेंट से हमने कह दिया FM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FD। विच साइड वी हैव प्रूव्ड दैट FM, विच FM, दिस FM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FD। अब बेसिकली शो क्या करना था, हमने इस ट्राइंगल को पहले हमने शो किया कि ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हम शो करेंगे, क्या शो करेंगे, अब हम शो करेंगे कि ये वाली ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। तो जब ये इसके इक्वल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जब ये इसके इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो ये वाली दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो करना हमने क्या है, दोबारा से अगर मैं बताऊँ आपको, कि अब आपको एक साइड पता चल गई है, कौन सी साइड, ये ब्लू वाली, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अगर आप अपनी ट्राइंगल यूँ बनाएं और अगर आप देखें, यहाँ पे आपके पास F लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास D लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास M लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल हैं।
अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके ये वाले एंगल भी इक्वल हैं। समझ आ गई बात? तो ये वही आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती है। तो बेसिकली थ्योरम में हम कर क्या रहे होते हैं, अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम बता रहे होते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज़ कैसे हम यूज़ करते हैं फैक्ट्स को, और हम अपने लॉजिक्स दे के थ्योरम को प्रूव करते हैं। ऑल्दो ये ऑलरेडी हमें चीज़ें पता होती हैं। सो व्हाट इज़ दिस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल 2 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी तरह वही चीज़ अगर मैं कर दूँ, अब मैं इसको अरेज करके आपको चीज़ यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने एक ट्रायंगल ये ले ली। अब दूसरी दफ़ा अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ड्रॉ कर देती, इधर यूँ कर देती, और यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे था हमारे पास E, और यहाँ पे है हमारे पास D, और यहाँ पे है M। अगर ये ट्रायंगल है तो अगर इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये सारा कुछ उन्होंने लिखा नहीं है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से बीच में लिखना भी चाहें यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे बीच में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एंगल 2 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट हुआ। सिमिलरली इसी तरह हमने एंगल 1 और एंगल 3 को कॉन्ग्रुएंट कह दिया। अब हमने क्या किया है, ये दो इक्वेशंस जो आपके पास गिवन थी, एंगल 2 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4 यू कैन सी एंगल 2 और एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड से ऐड कर दी एंड राइट हैंड साइड से ऐड कर दी। जो आपको पता है, ये तो रूल आपको पहले से पता है हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने जब कॉन्ग्रुएंसी में इसको ऐड अप किया, इनकी जो एंगल्स को ऐड अप किया, तो हमें क्या मिला, जब ये ऐड हो गए तो आपको एंगल 2 और एंगल 1 आप देखें क्या है। एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, आपके पास EDF, ये देखें ये एंगल है, ये वाला, और दूसरा मैं बना देती हूँ आपको ब्लू से। और एंगल 4 और एंगल 3 अगर आप देखें तो वो किसके इक्वल है, इसके EMF। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब देखें इन दोनों एंगल की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमने एक एंगल शो कर दिया है कॉन्ग्रुएंट है। जब एक एंगल कॉन्ग्रुएंट शो हो गया तो समझे आपका काम हो गया। अब आपने एंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आगे चलें, हम क्या कहते हैं कि नाउ इन ट्राइंगल ADB एंड EDC, अगर आप देखें तो सिंपल हम कह देते हैं, अगर मैं इसको सिंपल इस तरह कह दूं कि नाउ ट्राइंगल आपके पास क्या है, DEF, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ DEF, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आना चाहिए DEF, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास आएगा कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल MEF, जो पहले मैंने एक ब्लैक से और एक ब्लू से बनाया था। दोबारा वो करके दिखा देती हूँ। मेरे पास ये ब्लैक से है जी वन सेकेंड, ये DEF, और अब ये ब्लू से बना देती हूँ, और ये लें। अब ये दो डिफरेंट कलर्स हैं। अब ये दो डिफरेंट कलर का मतलब है कि ये वाला और ये वाला एंगल सेम है। अब एक एंगल सेम हो गया तो हमें कॉन्ग्रुएंसी सिंपल प्रूफ करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इन दो में हमने कह दिया एक एक एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है, अब मैं इसको अगर अरेज करके आपको क्लियर तरीके से बताऊं, अगर आप देखें जो FD है वो कॉन्ग्रुएंट था FM के, ये हमने प्रूव किया था। ये देखें, ये मैंने लिखा भी हुआ इधर, ये प्रूव आ गया। उसके बाद एंगल EDF एंड एंगल EM, ठीक है। अभी हमने क्या बताया, एंगल EDF, ये वाला 1-2 एंगल, ठीक है, और उसके बाद EMF, ये वाला EMF, और ये वाला 1, और कौन सा एंगल हो जाएगा, ऊपर वाला 1-2 है और नीचे वाला 3-4 है। ये हमने ऊपर अभी शो किए हैं। तो ये दोनों एंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो ये भी हमने प्रूफ किए हैं। अगर आप देखें तो इसके आगे भी रीज़न लिखी हुई है प्रूफ। तो दो साइड, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गई। अब बच क्या गया, हमारे पास एक साइड बच गई। तो मैं कह देती हूँ DE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ME। और वाई D इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ME, रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि A भी कॉन्ग्रुएंट था DE के। कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था, एक जगह पे आपको बताया था कि ME कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है M इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB, ठीक है, ME इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB। तो AB को कैंसिल कर दूँ बीच में से, तो व्हाट विल लेफ्ट, एक तो DE रह जाएगा और दूसरा आपके पास रह जाएगा ME। तो आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट DE कॉन्ग्रुएंट हो गया ME के, जो मैंने इधर लिख दिया, और रीज़न आगे लिख दिया है कि ईच वन इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB, ये जिसे मैंने कैंसिल किया है, ठीक है। तो आप शो कर सकते हैं कि ट्राइंगल DEF, ये सब कुछ अब मैं रब कर देती हूँ और सिंपल आपको बताती हूँ कि जहाँ से हमने किया वो ये ट्राइंगल, ये आपके पास है,
हमने शो क्या करवाना था, दिस वन, ये हमने कहना था कि ट्राइंगल आपके पास डी ई एफ, ये वाली डी ई एफ, इस फिगर की तरफ देखें, डी ई एफ इज़ कॉन्ग्रेंट टू एम ई एफ। तो ये आपके पास कॉन्ग्रेंट हो गए। तो आपने साइड पोस्टुलेट क्या लगाया, पोस्टुलेट मैं आपको फिर बता दूँ आपने कैसे पोस्टुलेट लगाना है। दिस इज साइड, दिस इज एंगल, दिस इज साइड। तो क्या पोस्टुलेट लगेगा, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, और यू कैन सी यू कैन राइट साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। जब ये कुछ आप लिख लेते हो तो बेटे जी आपके पास क्या चीज़ रहेगी, फाइनली यू कैन सी कि ट्राइंगल ए बी सी, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, हमने शो किया कि ट्राइंगल एम ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह अब ट्राइंगल ए बी सी, वन सेकेंड, ट्राइंगल ए बी सी एम ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरी दफ़ा हम करेंगे डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ को शो किया था ना, दूसरी दफ़ा हमने इसको लिया था, वो भी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल डी एफ भी कॉन्ग्रुएंट एम ई एफ की कॉन्ग्रुएंट है जी। अब फिर वही बात आ गई, इन दोनों को अगर मैं कैंसिल कर दूँ, वही ट्रांजिटिविटी वाली बात आ गई, ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अगर आप देखें तो हमने प्रूव यही करना था। दिस इज़ द लास्ट स्टेटमेंट एंड आई होप आपको क्लियर होगा। स्टिल यू पीपल हैव एनी डिफ़िकल्टी तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, अदरवाइज व्हेन यू विल टेक द थिंग्स फ्रॉम द बेसिस, तो मीन्स मतलब कहने का ये है कि इफ़ योर बेस आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू नो व्हाट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज़, तो you will not be having any difficulty to solve these theorems. I hope now this is clear. If still you have any difficulty, you can ask me. Okay boys, Allah Hafiz.